Welcome everyone. Welcome to my channel Legal Information by Lab Singh Sandhu. Today I am going to discuss the topic of confession, meaning of confession and types of confession. Now, what is meaning of confession? Confession means an admission in criminal cases. Mr. Justice Stephen defined the confession that it is an admission at any time by a person who is charged with a crime, stating or suggesting the inferences that he committed the crime. इसका सिंपल मीनिंग है कि एक अक्यूज है जिस पर चार्ज है किसी भी क्राइम करने का, जिस पर कोई दोष लगा हुआ है किसी क्राइम करने का, और वो एडमिट करे कि मैंने ये क्राइम किया है और ऐसा बयान दे जो कोर्ट की अटेंशन या इन्फ्रेंस ड्रा करे कि उसने क्राइम किया है, तो वो क्या होगा? कन्फेशन होगा। इसकी टू कंडीशन है, कन्फेशन की टू कंडीशन है। फर्स्ट, अक्यूज स्टेट दैट ही कमिटेड द क्राइम। सेकंड इज he gives the statement from which inference can be drawn that he committed the crime. Next is difference between confession and admission. Admission and confession. Admission is statement in civil proceeding, that is section 17 to 23 of Evidence Act deal with it. Confession is statement in criminal proceedings. Moreover, if admission is voluntary, it is not conclusive, but it operates as estoppel. But if confession is voluntary, then it operates as conclusive proof. Third, it may be used in favor of person. Section 21 of Evidence Act provide that admission can be used in favor of person in exceptional circumstances. But confession always go against the person. It cannot be used in favor of the person. Fourth is when any defendant in any suit or proceeding make any admission, then it is no defense against other defendant. मतलब एक डिफेंडेंट ने कोई एडमिशन कर लिया तो वो दूसरे डिफेंडेंट के अगेंस्ट एडमिशन नहीं होगा। बट एनी कन्फेशन बाय co-accused is relevant in joint trial, that is section 30 of Indian Evidence Act, that is confession by co-accused या confession by accomplice, section 133 of Evidence Act. Fifth is any statement which is oral or written, that is admission in suit or proceedings. If any confession in oral or written form, then it is admission of crime and that is confession. So this is the difference between admission and confession. Now all confession are admission, but all admission are not confession. मतलब जितनी भी confession होगी, जो भी confessional statement होगी वो admission होगा, but all admission are not confession. जैसे मैं इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। A give the statement that उसने B को पानी में डुबोकर मार दिया, that is confession. But if A give the statement that A and B are both are bathing in the water and B got drowned and A tried to save him but he could not save him, that is admission but not confession. So this is the difference between the admission and confession. Confession is admission by a person that he committed a crime, but admission is not that thing. Next, admission and confession are exception to hearsay evidence. Hearsay evidence मतलब कोर्ट जो है सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता. It requires some eyewitness or some documentary evidence, that is direct evidence. Court need a direct evidence to prove a crime. So admission and confession are exception to hearsay evidence. But ये admission और confession है, ये इस चीज की exception है and that is admissible in evidence. Now next is types of confession. First is exculpatory confession and inculpatory confession. Second is judicial confession and extrajudicial confession. Third is retracted confession. This is the type of confession. Now I am going to discuss one by one meaning of these confession. First is exculpatory confession. What is it meaning? Exculpatory meaning which free from blame. मतलब इस तरह की स्टेटमेंट जिसमें पर्सन अपने आप को ये कह रहा हो कि उसने क्राइम नहीं किया है. Inculpatory confession. It means person charge himself with blame.
मतलब पर्सन ये कहे कि मैंने क्राइम किया है, उसकी स्टेटमेंट से ये जाहिर हो कि उसने क्राइम किया है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि ए ने स्टेटमेंट दी थी कि ए एंड बी वर बाथिंग एंड बी गॉट ड्राउन्ड, ही ट्राइड टू सेव हिम बट ही कुड नॉट सेव हिम। सो ये स्टेटमेंट क्या है? दैट इज एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें वो कह रहा है कि उसने बी को बचाने की कोशिश की पर वो बी को बचा नहीं सका, दोनों इकट्ठे नहा रहे थे। तो दैट इज ओनली एडमिशन बट नॉट ए कन्फेशन। But if A says A and B were bathing and A kill B by drowning, A ने B को डुबोकर मार दिया, तो ये क्या है? इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। एंड बिकॉज वो अपने आप पे चार्ज लगा रहा है, खुद ही एडमिट कर रहा है कि उसने क्राइम किया है, तो ये इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है और ये इनकल्पेटरी कन्फेशन है। तो आपने सिंपल सा मीनिंग याद रखना है कि जब कोई पर्सन स्टेटमेंट दे कि उसने क्राइम नहीं किया है बट एडमिट करे रिगार्डिंग अक्रंस ऑफ द स्पॉट, तो वो एक्सकल्पेटरी कन्फेशन होगा। अगर पर्सन खुद कहे कि उसने क्राइम किया है या उसकी स्टेटमेंट से कोई इन्फ्रेंस रहा हो या सजेशन रहा हो कि उसने क्राइम किया है, देन दैट इज इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। नाउ आई विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑन दिस पॉइंट फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट केस इज पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 पीसी 47। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब इस केस के फैक्ट क्या हैं? इस केस के फैक्ट है कि जो डिसीज्ड है उसकी जो बॉडी है स्टील ट्रंक में मिली। फैक्ट ये है कि जो अक्यूज है उसने डिसीज जो उसका फादर इन लॉ है उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट दिया और उसको स्टील के ट्रंक में डाल के रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया। जो प्रोसिक्यूशन है वो अक्यूज की स्टेटमेंट को रिलाई कर रही थी। अक्यूज ने ये बयान दिया था कि 21 मार्च को उसके जो फादर इन लॉ है उनके घर पर आए और आउट हाउस में सोए, और 22 इवनिंग को वो रेलवे स्टेशन पर चले गए, और 23 को जब वो अपने किसी काम से जा रहा था रेलवे स्टेशन की तरफ, तब उसे अपने फादर इन लॉ की डेड बॉडी मिली। अब इसमें क्वेश्चन था कि वेदर स्टेटमेंट ऑफ पकाला नारायण स्वामी इज कन्फेशन और नॉट। अब इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि एनी सेल्फ एक्सकल्पेटरी मैटर is a confession, then if that statement found to be true, then it would negative the offense alleged to be confessed. कोर्ट कहती है कि जो अगर एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है कन्फेशन में, अगर उसको एडमिट कर लिया जाता है एज ए कन्फेशन, तब क्या होगा? तो वो कन्फेशन में जो उसने ऑफेंस किया है उसको नेगेटिव कर देगी, मतलब ये प्रूव करेगी कि उसने तो ऑफेंस नहीं किया है। सो कोर्ट ने हेल्ड किया इस केस में कि कन्फेशन मस्ट बी एडमिट ऑल द टर्म्स इन कन्फेशन, मतलब जो भी स्टेटमेंट दी गई है अब उसको या तो इन होल या तो फुली एक्सेप्ट करना चाहिए या फुली रिजेक्ट करना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा था, जो पकाला नारायण स्वामी की स्टेटमेंट को पार्शली प्रोसिक्यूशन एक्सेप्ट कर रहा था और पार्शली रिजेक्ट कर रहा था। प्रोसिक्यूशन जो है इनकल्पेटरी पार्ट है वो एक्सेप्ट कर रहा था और एक्सकल्पेटरी पार्ट रिजेक्ट कर रहा था। बट कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एक्सकल्पेटरी पार्ट है वो भी एक्सेप्ट करना होगा, होल ऑफ द स्टेटमेंट मस्ट बी एक्सेप्टेड। होल ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी एक्सेप्टेड, पार्शियल स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड रिगार्डिंग कन्फेशन। नेक्स्ट केस इज परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AI 1952 सुप्रीम कोर्ट 354। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस केस में क्या हुआ, जो परविंदर कौर है उस पर एलिगेशन लगा कि ही हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ हिज हस्बैंड। फैक्ट ऑफ द केस क्या है? Prosecution has the case that Palvinder Kaur has murdered his husband by giving him poison of potassium cyanide. Now they are relying on the confessional statement given by the accused. Now what is the confessional statement of the accused? Palvinder Kaur ने कहा कि उसके हस्बैंड को हंटिंग और फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उनके हस्बैंड ने फोटोज को वॉश करने के लिए जो मटेरियल है उसको अलमारी में रख दिया था, और उसी दिन जिस दिन उनके हस्बैंड की डेथ हुई उस दिन उनके हस्बैंड के पेट में दर्द उठ गया, और जो उनके पेट के दर्द की दवाई थी वो भी अक्यूज ने अलमारी में ही रखी थी। तो उस अक्यूज ने कहा कि गलती से उसने जो फोटोज को वॉश करने वाला मटेरियल है वो डिसीज्ड को दे दिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब इस केस में ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को उसकी स्टेटमेंट के बेसिस पे सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी में कन्विक्शन कर दिया, क्योंकि उसने अक्यूज ने क्या किया था, जब उसके हस्बैंड की डेथ होगी उसने उसकी बॉडी को कुएं में जाकर फेंक दिया। नाउ क्वेश्चन ये था, इस केस में क्वेश्चन ये राइज हुआ कि वेदर द स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड इज अमाउंट टू कन्फेशन और नॉट, और वेदर inculpatory part of confession can be relied or exculpatory part can be rejected। मतलब जो सेम क्वेश्चन पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर केस में उठा था वही क्वेश्चन इस केस में अराइज हुआ।
अब इस केस में हेल्ड क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन था कि वेदर स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड बलविंदर कौर इज अमाउंट टू कन्फेशन और वेदर inculpatory part can be accepted and exculpatory part can be rejected. उन्होंने हेल्ड किया कि स्टेटमेंट नॉट अमाउंट टू कन्फेशन, कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट होल ऑफ द स्टेटमेंट और रिजेक्ट होल ऑफ द स्टेटमेंट, कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट इनकल्पेटरी पार्ट। मतलब कोर्ट को या तो पूरी स्टेटमेंट एक्सेप्ट करनी होगी या पूरी स्टेटमेंट रिजेक्ट करनी होगी। कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती कि इनकल्पेटरी पार्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ले और एक्सकल्पेटरी पार्ट है वो रिजेक्ट कर दे। प्रिंसिपल की एक्सेप्शंस है। फर्स्ट इज भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 1979। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि if one part is inculpatory and other evidence is admissible then statement can be accepted। मतलब भी अगर कोई स्टेटमेंट इनकल्पेटरी है और उसके रिगार्डिंग उस पार्ट के रिगार्डिंग अदर एविडेंस अवेलेबल है और वो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट उस एविडेंस से प्रूव की जा सकती है देन दैट स्टेटमेंट कैन बी एक्सेप्टेड। मतलब इस केस में कोर्ट ने जो अदर केसेस हैं परविंदर कौर और पकाला नारायण स्वामी जिनमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि स्टेटमेंट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज ए होल, उस केस के अगेंस्ट मतलब उसकी एक्सेप्शन में प्रिंसिपल दे दिया। वो केस है निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1966 सुप्रीम कोर्ट 1422। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एक्सकल्पेटरी पार्ट है अगर वो इम्प्रोबेबल है मतलब वो हो ही नहीं सकता देन कोर्ट शुड रिजेक्ट इट एंड एक्सेप्ट ओनली इनकल्पेटरी पार्ट। नेक्स्ट इज जुडिशियल कन्फेशन। Section 164 CRPC also deal with judicial confession, that is confession recorded by judicial magistrate. So judicial confession कहते किसे हैं? Any statement which is given voluntarily by the person, मतलब अपनी इच्छा से दी गई statement before magistrate or court, any statement which is given before magistrate or court voluntarily, ये जरूर याद रखना आपने voluntarily, that is judicial confession. Judicial confession is a good evidence because according to section 80 of Evidence Act, confession recorded by judicial magistrate is presumed to be genuine. So जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कन्फेशन रिकॉर्ड किया है उसको जेन्युइन प्रिज्यूम किया जाएगा, ये सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट की कहती है। जनरली जो कोर्ट है, कोर्ट के सामने जो भी बयान दिया जाता है उसको जेन्युइन माना जाता है, उसको प्रिज्यूम किया जाता है। अगर कोई भी कन्फेशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है तो सेक्शन 164 सीआरपीसी की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होती है कोर्ट ने। सेक्शन 164 की रिक्वायरमेंट कोर्ट ने फॉलो की है देन confession is valid confession and it is judicial confession. In Kashmira Singh versus State of MP, AIR 1952, Supreme Court 159, Honorable Supreme Court held that it is enough that judicial confession filed before court. It is not necessary to examine magistrate. इस केस में क्वेश्चन ये हुआ था जो जुडिशियल कन्फेशन था वो ही सिर्फ एविडेंस में प्लेस कर दिया गया था, जो मैजिस्ट्रेट है जिन्होंने एग्जामिन किया था अक्यूज को उनकी एविडेंस नहीं करवाई गई थी। बट कोर्ट ने हेल्ड किया जो एविडेंस है, जो कन्फेशन है रिकॉर्ड किया मैजिस्ट्रेट ने वो सफिशिएंट है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट कन्फेशन। मैजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कौन सा होगा? दैट कन्फेशन गिवन अदर देन मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। कोर्ट और मैजिस्ट्रेट को छोड़कर किसी और पर्सन को कन्फेशन दिया है कि मैंने क्राइम किया है तो वो क्या होगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा। इट कैन बी मेड टू एनी पर्सन और बॉडी ऑफ पर्संस, मतलब एक पर्सन को भी कन्फेशन दिया जा सकता है और एक से ज्यादा पर्सन को भी कन्फेशन दिया जा सकता है। नाउ व्हेन दैट कन्फेशन कैन बी रिलाइड, व्हेन इट इज प्रूव्ड दैट द कन्फेशन इज फ्री एंड वॉलंटरली। सेकंड, कन्फेशन is proved with corroboration with other evidence, because generally extrajudicial confession is weak evidence, so it is relied when it is proved that it is corroborated with other evidence, मतलब अदर एविडेंस भी उस कन्फेशन को सपोर्ट कर रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ए पर्सन इज चार्ज्ड विद काउ स्लॉटर। जब काउ स्लॉटर की रिपोर्ट लॉन्च की जाने वाली थी, जो पर्सन है वो विलेज के मुखिया के पास जाके एडमिट करता है कि उससे गलती होगी, उसने ये क्राइम कर दिया, तब ये कन्फेशन क्या हो गया? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया। मतलब जो भी कन्फेशन है इट इज कन्फेशन गिवन बाय ए पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। किसी भी पर्सन को जाकर कन्फेशन कर दे तो वो क्या होगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा। बट इसकी एक्सेप्शन है, पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको जो कन्फेशन किया जाना है वो आगे मैं डिस्कस भी करूंगा सेक्शन 24 से 26 में, वो कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होगा?
confession given to any other person except magistrate or court. Next is case law on extrajudicial confession. Bhagwan Das versus State of Bihar, AIR 2012, सुप्रीम कोर्ट 1863। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड क्या किया? कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है इट मस्ट बी वॉलंटरी, सेकंड इट मस्ट बी फ्री स्टेट ऑफ माइंड। अगर किसी पर्सन ने खुद की इच्छा से और विद फ्री स्टेट ऑफ माइंड एक कन्फेशन दिया है विदाउट एनी प्रेशर, देन दैट कन्फेशन इज एडमिसिबल। नेक्स्ट इज सहदेवन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 2012, सुप्रीम कोर्ट 2435। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के रिगार्डिंग गाइडलाइंस इशू की। क्या गाइडलाइंस हैं? फर्स्ट है, कोर्ट ने कहा कि इट इज ए वीक एविडेंस बट इट मस्ट बी एग्जामिन्ड विद ग्रेट केयर एंड कॉशन। कोर्ट ने कहा कि ये एविडेंस जो होती है वीक एविडेंस होती है, इसे बहुत ही केयर एंड कॉशन से एग्जामिन करना चाहिए। क्यों एग्जामिन करना चाहिए? कोर्ट को ये देखना चाहिए कि दी कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरी, इट इज ट्रूथफुल, whether accused is not giving confession by way of pressure or undue influence. Second, confession must be voluntary and truthful. Third, it inspire confidence of the court. Fourth, it must be corroborated by other evidence. कोई और एविडेंस जो है उसको सपोर्ट करनी चाहिए उस कन्फेशन को। फिफ्थ, this confession not suffered from material discrepancies. material discrepancies मतलब जो अदर एविडेंस है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सिक्स, इट मस्ट बी प्रूव लाइक एनी अदर फैक्ट। जैसे अदर फैक्ट प्रूव किए जाते हैं वैसे ही इसको एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रूव करना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आ गया तो सिंपल उसको उसके कन्फेशन देने से नहीं होगा, उसके कहने से नहीं होगा भी उसी पर्सन ने कन्फेशन दे दिया। ये सारी रिक्वायरमेंट फॉलो होनी चाहिए, तब वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है कोर्ट में एडमिसिबल होगा। नेक्स्ट इज retracted confession. It is statement made by the accused before the trial and he admit that he committed the offense, but after start of trial he repeated the statement कि उसने क्राइम नहीं किया है, then that confession is retracted confession. मतलब पहले तो एडमिट कर लिया ट्रायल से पहले कि मैंने क्राइम किया है, बाद में एट द टाइम ऑफ ट्रायल वो कहता है कि उसने क्राइम नहीं किया है, तो दैट कन्फेशन इज रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब रिट्रैक्टेड कन्फेशन टू टाइप्स में आता है। फर्स्ट, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया, एक पर्सन ने किसी पर्सन के पास एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया, बाद में वो ट्रायल में कहता है कि उसने तो कोई कन्फेशन नहीं किया। दूसरा आ जाता है कन्फेशन गिवन बिफोर द कोर्ट। तो जो ये दोनों कन्फेशन है इनमें डिफरेंस है। जो जुडिशियल कन्फेशन है उसको कोरोबरेट करने के लिए कम एविडेंस की जरूरत होगी, बट जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है दैट मस्ट बी प्रूव्ड लाइक ए फैक्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? It is unsafe to base conviction unless it is corroborated by other evidence. It is rule of practice and procedure. Rule of practice and procedure क्या है? It is unsafe to convict. मतलब जनरली अगर कोई retracted confession आ जाता है तो then it must be corroborated by other evidence. कोई other evidence होनी चाहिए सपोर्ट करने के लिए, because it is unsafe. But it is not necessary that each and every circumstances independently corroborated. मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि each and every circumstances प्रूव किए जाएं। मतलब ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा कि कैसे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस प्रूव करने हैं। नॉर इट इज एसेंशियल दैट corroboration मस्ट कम फ्रॉम सर्कमस्टांसेस डिस्कवर्ड आफ्टर कन्फेशन। मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि जो कन्फेस करने के बाद सर्कमस्टांसेस डिस्कवर हो ये प्रूव करना भी जरूरी है। तो सीधी सी बात यही है कि कोर्ट ने देखना क्या है कि कन्फेशन की ऑथेंटिसिटी क्या है, वेदर कन्फेशन इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और वेदर इट इज जुडिशियल कन्फेशन। अगर जुडिशियल कन्फेशन है तो कोर्ट को ज्यादा एविडेंस corroborate करने की जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि कन्फेशन इज वॉलंटरी एंड ट्रूथफुल बिफोर ट्रायल तो कोर्ट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली उसको कन्विक्ट कर सकती है। बट इफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन देन कोर्ट फॉलो करेगी सेक्शन 24 से लेके 26 का प्रिंसिपल और उसके बाद सेक्शन 27 को भी फॉलो करेगी कि क्या कोई एविडेंस डिस्कवर हुई है उसकी कन्फेशन से। सो आज की वीडियो में मैंने कन्फेशन एंड टाइप्स ऑफ कन्फेशन डिस्कस की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली वीडियो में मैं सेक्शन 24 से लेके 27 एंड ऑनवर्ड्स डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू।